Hello and good evening, and I welcome you on the Filler Form app. How are you, student? I hope you all are fine. Uh, Once again, let's move towards the make true our dream to become JRF and NET. Okay? तो आइए एक बेहतरीन सपने की ओर आगे बढ़ते हैं और उस सपने को साकार करने के लिए हम लोग प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उस परिश्रम को ताकत देते हैं और फिर से 8 मई है ना 2000 जो हमारा 23 है उसमें आपका स्वागत है। आज के दिन में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग, वेलकम, जय हिंद। ओके, so voice, audio, video, everything is clear. So once again, let me a warm welcome. And student, I would like to tell you Filler Farm. I am the team member of Filler Farm, and the Filler Farm may be one of the you can say most dedicated team farm in the field of UGC NET JRF, and we are providing the best content. And student, I would like to tell you that our Filler Farm team, our app is on the different social media platform. You can join us on social media app like Instagram, Telegram, WhatsApp, etc. You can join us. Okay, student, and स्टूडेंट हियर आर आवर कोर्सेज यू कैन परचेस वेरी है ना बहुत ही कम फीस में आपको जो है हमारे कोर्स मिल रहे हैं। ये 6 मंथ कोर्स है, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2 एंड बोथ यू कैन परचेस पेपर 1 एंड पेपर 2 फॉर 6 मंथ एंड 12 मंथ्स, ठीक है। And student, we will provide you now, you as you know, we are providing notes, then we will discuss previous year question paper with answer also and mock test. Okay, so student, this is the best platform, and if you want to get benefit, यदि आपको इस टीम से इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना है और sorry, here you can use my code, you can use this code also. uh, uh, you can use this code also, G210, or you can use my code DISENG10. Any code you can use and you can go you can get benefit, है ना। DISENG10 or GITU10, this code can be used by you if you want to get benefit of 10%, ठीक है। Here is once again, let me formally let me tell you about me. Here I am Dinesh Kamli Brahmane, and I have already qualified UGC NET and awarded by the Government of India as well as Government of Madhya Pradesh in the field of NSS, and I have experience of teaching of many years. And now let's move ahead. Let us begin today's class. Okay, student, I hope voice and everything is fine. Yes or no? Tell me. सब कुछ क्लियर है? आवाज और ये सब, ऑडियो, वीडियो, विजुअलाइजेशन, PPT, everything is fine. See, so student, let's start today's topic with Sir Philip Sidney, one of the most prominent writer, Sir Philip Sidney, poet you can say. Okay, as far as Sir Philip Sidney is concerned, so basically he was born in 1554 and died in 1586, ठीक है। ओके, 1554 में उनका जन्म हुआ है और डाइड इन 1586। देखिए आप बहुत कम उम्र में, आप देखिए बहुत ज्यादा उम्र नहीं है ना। एट द वे यू कैन से, देखिए आप बहुत कम उम्र में उनकी डेथ हुई है और उन्होंने लिखा है। सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट सर फिलिप सिडनी, सो ही वाज एन इंग्लिश पोएट, कोर्टियर, स्कॉलर एंड सोल्जर। स्टूडेंट पोएट भी है, कोर्टियर है यानी कोर्ट जो होते थे, स्कॉलर बुद्धिमान आप देखिए, है ना, और सोल्जर भी रहे हैं। जितने भी राइटर हमने पढ़े हैं, पोएट्स के बारे में पढ़ा है, वो कहीं ना कहीं रॉयल फैमिली से उनका कहीं ना कहीं क्या है कनेक्शन रहा है। द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द एलिजाबेथन एज, ठीक है। एलिजाबेथन एज के ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोमिनेंट फिगर या राइटर रहे हैं। ये ठीक है, इतना आप जान लीजिए। केंट में इनका जन्म हुआ है। इनकी सिस्टर का नाम मैरी है। देखिए हिज यंग सिस्टर मैरी, ध्यान रखना ये सिस्टर का नाम मैरी है, जिनकी शादी हुई है किससे? हेनरी हर्बर्ट से। स्टूडेंट याद रखना है, अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, है ना। ये राजकुमार कह लो, इस तरीके से
है ना, कुछ पर्टिकुलर अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक कोई उपाधि मान लीजिए इनकी, तो उनकी सिस्टर जो मेरी है उनकी शादी अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक से हुई है, और जो खुद भी स्टूडेंट मेरी यानी सर फिलिप सिडनी की जो सिस्टर है वो खुद भी एक राइटर, ट्रांसलेटर और लिटरेरी पैट्रन रही है। ठीक है, Mary married Henry Herbert, Earl of Pembroke, who was a writer, translator, and literary patron. Okay, student. So remember, यहाँ पर तीन कैरेक्टर आ गए, कौन कौन? सर फिलिप सिडनी के उनकी सिस्टर, हेनरी हर्बर्ट उनके हस्बैंड जिनसे शादी हुई है अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। Then we see Sydney dedicated his Arcadia, इनकी ये पोयम है, एक वर्क है स्टूडेंट, आर्केडिया एक वर्क है इनका, टू हिज सिस्टर मेरी, है ना, उनकी सिस्टर मेरी को डेडिकेटेड है उनका ये वर्क। बट लेटर सिडनी आस्क्ड आर्केडिया टू बी बर्नड, लेकिन कुछ इशू रहे, कुछ कारण रहे, तो बाद में ये जो इनका वर्क है आर्केडिया, इसको जो है जलाने के लिए कहा गया, इसको ब्यूरिड कर दिया गया ना, बर्नड। ठीक है ना। बाद में क्या हुआ, इनकी डेथ हुई आफ्टर द डेथ ऑफ सिडनी, है ना। तो सिडनी की डेथ के बाद में क्या हुआ, मेरी री यू कैन से रीरॉट स्टूडेंट, यहां पर ऐसा लिखना है ना, ये देखिए, ठीक है, रीरॉट है ना, यहां पर आप कर लेना रीरॉट, ठीक है ना, री रॉट। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर से इसको उनकी सिस्टर ने आर्केडिया को लिखा था, विच बिकेम नोन एज द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया। ये देखिए बाद में किस नाम से जाना गया, द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया। एक्चुअल में ये आर्केडिया उनकी सिस्टर मेरी को ही समर्पित था। सिडनी को बाद में कोई कारण रहा तो आर्केडिया को बर्न कहने के यानी उसको नष्ट करने के लिए कहा गया। बाद में क्या होता है कि जो है उन्होंने जो है द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया, द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक आर्केडियास के नाम से मेरी ने यानी उनकी सिस्टर ने खुद इसको रीराइट किया है। समझ में आया? यस आर नो? यस आर नो? वॉइस एंड एवरीथिंग इज फाइन? यस आर नो स्टूडेंट? टेल मी। सी, in 1572 he was elected member of parliament Shrewsbury, है ना, यानी एक तरीके से सांसद भी चुने गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी। ठीक है, कौन? श्री सर फिलिप सिडनी। अब सिडनी हैड प्लान टू मैरी पेनेलोफ डेवेरियक्स, ये देखिए यहां इनसे शादी करने का प्लान किया, डॉटर ऑफ वाल्टर डेवेरियक्स, first Earl of Essex, but Sidney died before marriage, so Penelope was married to Lord Rich. इनकी शादी ये करना चाहते थे पेनेलोप से, लेकिन इनकी डेथ हो जाती है। बाद में जो पेनेलोप है वो लॉर्ड रिच से शादी करते हैं। ठीक है, सिडनी डेडिकेटेड हिज सोनेट, इनके एक बहुत महत्वपूर्ण सोनेट है जिसकी हम आज चर्चा भी करेंगे, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला टू पेनेलोप डेवेरियक्स। यानी किसी ने पढ़ा है इसको, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला? यस और नो? हैव यू एवर रीड दिस पोएम एस्ट्रोफिल एंड स्टेला? यस स्टूडेंट, टेल मी। चलिए, इन 1583 सिडनी मैरिड फ्रांसिस, ठीक है ना, और जो यहाँ पर 83 में इनकी शादी हुई थी फ्रांसिस से। ठीक है, और ये बाद में मतलब दूसरी शादी करना चाहते थे, आप ये मान लीजिए पेनेलोप से। अब यहाँ पर देखिए, सिडनीज फ्रेंड ग्रेविले सेज, उनके बारे में कुछ कमेंट किया था उनके दोस्त, है ना, क्या नाम है उनका, ग्रेविले या ग्रेविल। उन्होंने क्या किया, क्या उनके ऊपर कमेंट किया कि वेयर एवर ही वेंट ही वॉज बिलव्ड एंड ओबेड। ये देखिए, जहां कहीं पर भी वो जाते थे, है ना, उनको बहुत प्रेम मिलता था और बहुत उनका आदर सत्कार किया जाता था, बिकॉज ही वॉज वेरी एक्सट्रीमली स्कॉलर पर्सन, स्कॉलर राइटर। यस और नो? गॉट इट? In 1586, he fought in the Battle of Zutphen, where he was wounded, है ना। ये जो बैटल ऑफ जुटफेन है ना, ये जो युद्ध लड़ा गया था जुटफेन का, वहां पर ये है ना, वाज वुंडेड इन द थाई, यानी इनके है ना थाई में क्या है, इनको घाव हो गया था, जख्म हो गए थे, एंड विद इन अ मंथ ही डाइड। यानी यहाँ पर ये कारण पूछा जा सकता है कि कैसे इनकी मौत हुई सर फिलिप सिडनी की। तो बैटल ऑफ जुटफेन में जो है ये घायल हो गए थे, थाई में इनको जो है घाव हो गए थे, और उसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। गॉट इट स्टूडेंट? सी, ड्यूरिंग हिज फ्यूनरल
है ना, ये देखिए, ड्यूरिंग हिज फ्यूनरल लंदन क्राउड सेड अबाउट हिम, है ना। यहाँ देखिए, फ्यूनरल का मतलब है जब इनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, जैसा भी है, तो लोगों ने क्या इनके बारे में कहा कि फेयरवेल द वर्दिएस्ट नाइट दैट लिव्ड। ये देखिए, वर्दिएस्ट, बहुत कीमती नाइट, नाइट की उपाधि दी जाती थी ब्रिटेन के द्वारा, आप जानते हैं स्टूडेंट। तो वर्दिएस्ट नाइट दैट लिव्ड, फेयरवेल द वर्दिएस्ट नाइट दैट लिव्ड, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से उनको एक ऑनर दिया गया, जैसे किसी की मृत्यु के बाद में लोग टीका टिप्पणी करते हैं, कुछ अच्छा कहते हैं, कुछ बुरा कहते हैं, तो ये इनके बारे में कहा गया, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन है। एडमंड स्पेंसर की हम बात करें स्टूडेंट, सो एडमंड स्पेंसर ने इनके पर शोक व्यक्त करते हुआ क्या कहा, ये एडमंड स्पेंसर mourned his death in the pastoral elegy, है ना। ये देखिए, एस्ट्रोफल, एडमंड स्पेंसर ने भी एस्ट्रोफल लिखा है यहाँ पर, उनका अपना जो पेस्टोरल इलेजी है, तो उसके ऊपर उन्होंने एस्ट्रोफल लिखा है। पेस्टोरल इलेजी, इलेजी किसी को समर्पित करते हुए लिखी जाती है ना, इलेजी शोक, शोक अभिव्यक्ति। तो एडमंड स्पेंसर ने भी लिखा है इनके ऊपर। नन ऑफ हिज वर्क्स वर पब्लिश्ड इन हिज लाइफ टाइम, एज वी सी मोस्ट ऑफ द वर्क्स आर पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ। अब देखिए ना, ये बहुत सारे वर्क, बहुत सारे राइटर जिन्होंने मेहनत करी है, तो यहाँ पर क्या है, इनकी कोई भी वर्क जो है प्रस्तुत नहीं हुआ था, इनकी लाइफ टाइम में बाद में प्रस्तुत हुआ है। अ फोलियो ऑफ हिज वर्क अपीयर्ड इन 1598, 1598, अ फोलियो ऑफ, देखिए फोलियो मैंने फिर कहा है, ये विलियम शेक्सपियर के वहां भी ये वर्ड आया था कि फोलियो मतलब कलेक्शन ऑफ मेनी वर्क्स, बहुत सारे इनके पोएम्स हो सकती, बुक्स हो सकती है, कलेक्शन ऑफ मेनी बुक्स एक साथ कंबाइन करके उसको, है ना, फोलियो बना के उसको एक तरीके से पब्लिश किया गया, प्रस्तुत किया गया। तो 1598 में उनका कंबाइंड फोलियो आता है, ठीक है। एडमंड स्पेंसर ने डेडिकेट की हिज, ये देखिए यहाँ पर एक और देखो, शेफर्ड्स कैलेंडर, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, इनके बारे में जाना है। कैलेंडर जनवरी से फरवरी, जो शेफर्ड है उनकी चरवाहे होते हैं, उनके ऊपर है। तो शेफर्ड्स कैलेंडर जो इनकी पूछा जा सकता है कि एडमंड स्पेंसर की जो शेफर्ड्स कैलेंडर जो पोयम है, ये वर्क किसको डेडिकेटेड है, तो स्टूडेंट ये जो सिडनी को क्वेश्चन बन सकता है, हु हैज रिटन शेफर्ड्स कैलेंडर रिटन बाय एडमंड स्पेंसर, whom it is dedicated, it is dedicated to Sydney। समझ में आ रहा है ये सानो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं, मेक योर माइंड ब्रॉड, वहीं अपने आप से क्वेश्चन करे क्या है, कैसा क्वेश्चन बन सकता है। इन 1591 सर वाल्टर रेले रॉट पोएम्स ऑन सर फिलिप सिडनी, ये देखिए, पोएम्स ऑन सर फिलिप सिडनी, ये टाइटल है स्टूडेंट, ये टाइटल है, पोएम्स ऑन सर फिलिप सिडनी, इट इज रिटन बाय सर वाल्टर रेले, ठीक है। तो ये जहां आपको याद रखना है, सर वाल्टर रेले, ठीक। देन कुछ मेजर वर्क्स की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, यस आर नो, व्हाई इज एवरीथिंग इज फाइन स्टूडेंट, यस आर नो, सी। चलिए, मेजर वर्क्स में हम बात करें स्टूडेंट, द लेडी ऑफ मे, द लेडी ऑफ मे पब्लिश्ड इन 1578 और 79। स्टूडेंट आपको आसान लग रहा है ये चीजें, फैक्ट है, कौन सा वर्क किसने लिखा है, इतने राइटर हमारे पास, आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे, याद नहीं होगा, प्लीज I would like to tell you, you have to memorize. If you don't memorize, if you don't remember, student, this is going to be hard for you. So please memorize the things, all the works. ठीक है, The Lady of May 1578 और 79, it is a masque written and performed for Queen Elizabeth, ठीक है। तो ये एक तरीके से मास्क या जो एक कठपुतली के साथ में एक ऐसा वर्क है जो क्वीन एलिजाबेथ के समक्ष परफॉर्म किया गया था, ये द लेडी ऑफ मे। अब जो इसका महत्वपूर्ण जो वर्क है स्टूडेंट, हम उसकी चर्चा करेंगे, है ना, एस्ट्रोफल एंड स्टेला, ठीक है। तो ज्यादातर आपको ई मिलता है, यहाँ पर आप आई लगा लीजिएगा,
ठीक है, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइमिंग याद रखना स्टूडेंट, 1591 में पब्लिश हुआ है। दिस वर्क इज पब्लिश्ड इन 1591। ओके स्टूडेंट, यस आर नो? ठीक है, 1591। अब यहाँ पर क्या है, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला क्या है, आइए देखते हैं। पढ़ा है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आस्क यू अबाउट, है ना, दिस, हैव यू एवर रेड दिस पोएम, दिस वर्क? यस टेल मी, हैव यू एवर रेड दिस पोएम? यस टेल मी स्टूडेंट, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, क्या आपने पढ़ा है उसको? यस आर नो, टेल मी, have you read this poem? Have you? Yes, tell me student. Priyanka, Poonam, tell me. Okay, see, Stoffel and Stella में क्या है? See, it is the English sonnet. First of all, basic question, it is the English sonnet. Once again, let me remind you, there are Petrarchian or Italian sonnet, and other is English sonnet or Shakespearean sonnet. Remember? Yes, Star Lover, good. Star Lover, है ना? चलिए, English sonnet, ठीक है। इंग्लिश सोनेट सीक्वेंस कंपोज्ड इन द अर्ली 1580s, है ना, ये देखिए, है ना, सीक्वेंस कंपोज्ड इन द अर्ली 1580s, है ना, ये कंपोज किया गया है अर्ली 1580s में, ठीक है, इंग्लिश सोनेट है। बट फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1591 एंड ऑथराइज्ड वर्जन इन 1598। क्लियर है? अब ये पहला वर्जन 1591 में आया है, इसलिए इसको माना जाता है 1591, लेकिन जो ऑथराइज्ड वर्जन है बाद में और जो आया वो 1598। अब यहाँ पर पहला तो ये चीजें जान लो, ये पेट्रार्कियन या इटालियन नहीं है, ये इंग्लिश सोनेट है। आपको सोनेट के बारे में क्या है, व्हाट इज सोनेट? सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम और वर्स, एंड देयर आर टू मेजर पार्ट्स, पेट्रार्कियन सोनेट एंड शेक्सपियरियन और इंग्लिश सोनेट। पेट्रार्कियन सोनेट में हमने क्या देखा, there are three quarter, there are octave and sestet in Petrarchian sonnet. octave मतलब 8 लाइन का, sestet मतलब 6 लाइन का। 8 लाइन में प्रॉब्लम क्रिएट जाती है, 6 लाइन में sestet में जवाब दिया जाता है। गॉट इट स्टूडेंट? चलिए, उसके बाद में हम बात करें, इट कंटेन्स 108 sonnets and 11 songs। ये याद रखना है इसको, दिस इज, है ना, इन दिस सोनेट क्या है, सिडनी नेटिवाइज्ड द इटालियन मॉडल ऑफ पेट्रार्की। ये देखिए, हालांकि ये इंग्लिश सोनेट है, इंग्लिश सोनेट है, लेकिन यहाँ पर इन दिस सोनेट सिडनी नेटिवाइज्ड द इटालियन मॉडल ऑफ पेट्रार्क। ये देखिए, आप क्या होता है इंग्लिश में, आप देखेंगे विलियम शेक्सपियर ने भी क्या किया, मॉडिफिकेशन किया है, बेसिकली इटली से ओरिजिन हुआ है ना, हम सोनेट के बारे में देखेंगे, तो इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उसको लागू कर देते हैं, बना, मतलब नए कुछ तरीके नए बना देते हैं। आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आपको याद रखना है स्टूडेंट, वो है इसमें टोटल जो है 108 सोनेट्स हैं, 11 सॉन्ग्स हैं, ये चीजें याद रखना है ना। 108 सोनेट्स, यानी जैसे हाउ मेनी सोनेट्स you can say were written by William Shakespeare? Tell me, in his whole lifetime, how many sonnets wrote? How many sonnets were written by William Shakespeare? As you know, 154 sonnets. कितने? 154. Thus, in this Strophil and Stella, Sir Philip Sidney has written 108 sonnets. Got it? 108 sonnets and 11 songs. अब यहाँ पर क्या है, द लेटिन वर्ड स्टेला, द लेटिन वर्ड स्टेला, इसका मतलब होता है स्टार। देखिए, ये देखिए यहाँ पर स्टेला, स्टल है ना, स्टेला क्या मतलब हुआ इसका, स्टार। और जो यहाँ पर देखिए स्ट्रोफिल, इसका मतलब होता है लवर, ठीक है ना, ये देखिए, तो ये स्ट्रोफिल का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, स्टार लवर। गॉट इट? दूसरा नेक्स्ट देखें हम, ठीक है, स्ट्रोफल एंड, देखिए स्ट्रोफल एंड स्टेला, तो यहां पर क्या है स्टूडेंट, थोड़ा सा हम देखें इसमें, स्ट्रोफल एंड स्टेला में, सी, तो स्ट्रोफिल स्टार लवर,
देखिए एक बार फिर से, इसका हो गया है ना, ये देखिए फिल एंड स्टिल। देखिए यहां पर स्ट्रोफिल का मतलब हुआ स्टार, और फिल का मतलब हुआ लवर, और ये स्टेला का अगेन ये दूसरा वर्ड है ना, तो इसका मतलब भी होता है स्टार। सी, अब यहां पर ये पहला स्ट्रोफल मतलब स्टार लवर, और ये दूसरा क्या है, स्टार। लेकिन यहाँ पर जो सर फिलिप सिडनी का स्टार कोई और है, समझ में आ रहा है, एक स्टार कोई और हो, स्टार लवर, लेकिन यहाँ है ना, यानी स्टार को प्रेम करने वाला, और दूसरा देयर इज अ स्टार। यहाँ स्टार का मतलब क्या है ना, हु इज स्टार। यहाँ पर सर आई दिस पोएम टॉक्स द स्टार ऑफ सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी के स्टार की बात हो रही है, ठीक है, सर फिलिप सिडनी के स्टार की बात हो रही है। यहाँ पर जो है स्टार लवर ऑफ स्टार, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं आगे हम, तो सी वेट, चलिए अब यहाँ पर देखिए रादर देन, है ना, रादर सिडनी अडॉप्टेड पेट्रार्कियन राइम स्कीम, है ना, बट ही यूजेस इट विद सच फ्रीडम दैट 15 वेरिएंट्स आर एम्प्लॉयड। ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पेट्रियार्कियन राइम स्कीम को भले उन्होंने फॉलो किया है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा फ्रीडम के साथ इसको लिखा है ना, ताकि 15 वेरिएंट्स आर एम्प्लॉयड, ठीक है। हाँ यस, वन साइडर लवर यू कैन से, ऑफ कोर्स। अब यहाँ पर देखो सी, देखिए इन द सोनेट एस्ट्रोफिल रिप्रेजेंट, यहाँ पर देखिए रिप्रेजेंट सिडनी हिमसेल्फ, है ना, ये एस्ट्रोफिल का मतलब क्या है, सिडनी स्वयं, है ना, एस्ट्रोफिल मतलब यहाँ पर सिडनी हिमसेल्फ। व्हाइल स्टेला रिप्रेजेंट्स लेडी पेनेलोप डेवेरियक्स, ये देखिए जिनसे वो शादी करना चाहते थे, हूँ विद whom he wanted to marry, later lady, है ना, रिच, एंड देन क्या है, देन क्या है, he has written this for lady rich, he dedicated this work to Penelope, ठीक है ना, ये क्या है, ये पेनेलो, ये सर लेटर लेडी रिच, बाद में लेडी रिच के रूप में वो परिवर्तित हो गई। देखिए तो ये जो है कुल मिला के पेनेलोप को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। एस्ट्रोफल यहाँ पर क्या है, सिडनी हिमसेल्फ, और जो स्टेला है, वो स्टेला कौन है यहाँ पर, हु इज स्टेला, ये क्वेश्चन बन सकता है, हु इज स्टेला, तो यहाँ पर पेनेलोप है। दिस सोनेट वाज प्रिंटेड बाय थॉमस न्यूमैन इन 1951, ठीक है ना, तो ये बहुत बाद में इसका पब्लिकेशन हुआ है, देख लीजिए। अब यहाँ देखिए दिस एडिशन इंक्लूडेड 10 सॉन्ग्स, ये पहला जो एडिशन उसमें 10 बाय सिडनी एंड प्रीफेस बाय थॉमस नेश, थॉमस नेश ने इसमें प्रीफेस लिखा है। इट आल्सो इंक्लूड्स द वर्सेस ऑफ कैम्पियन, सैमुअल डेनियल, अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड, है ना, इनके भी कुछ वर्क यहाँ पर पब्लिश हुए हैं, वर्स यानी पोयम। इन सॉन्ग 6 देयर इज अ डिबेट बिटवीन ब्यूटी एंड म्यूजिक, कुछ यहाँ पर है। इन सोनेट 12 एस्ट्रोफल कंपेयर्स, एस्ट्रोफल की तुलना हो रही है स्टेलास हार्ट टू साइटेडल, है ना, यहाँ पर देखिए स्टेला एस्ट्रोफल कंपेयर्स स्टेलास हार्ट, स्टेला के हृदय की तुलना वो साइटेडल से करते हैं, ठीक है, किसमें, सोनेट नंबर 12 में। और उसके बाद में इन सोनेट 9 स्टेलास फॉरहेड, जो फॉरहेड है ना, ये फॉरहेड इज रिप्रेजेंटेड एज मेड आउट ऑफ एलेबेस्टर, द कलर ऑफ स्टेलास एयर इज ब्लॉन्ड। कुल मिला के पूरी तारीफ में ये पूरी पोयम लिखी गई है। इसको थोड़ा सा हम ब्रीफली
इसको डिटेल में आप लोग और देखना। आर्केडिया इनकी एक पोयम है स्टूडेंट। आर्केडिया यहाँ पर देखिए, सिडनी asserted that he wrote it to entertain his sister Mary Herbert। once again है ना, ये मैंने जैसा कि आपको बताया, ये अपनी सिस्टर के लिए एंटरटेन करने के लिए पोएम लिखी है, द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक। इट इज रोमांस इन प्रोज। ठीक है ना, आप ये देखिए क्या है, इट इज रोमांस इन प्रोज। ठीक है ना, सॉरी ये क्या है, प्रोज फॉर्म आप कह सकते हैं। द अर्ली वर्जन ऑफ आर्केडिया इज कॉल्ड ओल्ड आर्केडिया। ऐसा क्यों, अर्ली वर्जन क्यों, जैसा कि आपको पता है, एज यू नो, लेटर व्हेन ही हैज रिटन दिस वर्क, so he was asked, Sir Philip Sidney was asked to give burned, है ना, to burn it, है ना, and he burned it, and later his sister Mary, है ना, she has written it, okay। he himself edited it, and the new version is called the New Arcadia। बाद में New Arcadia आया, और यहाँ पर लेटर द न्यू आर्केडिया वाज एडिटेड बाय, ये देखिए बहुत सारे लोगों ने इसको एडिट किया, फूके, ग्रेविल, मैथ्यू ग्रीन, जॉन फ्लोरियो, पब्लिश्ड इन बिगर फॉर्म टू द ओल्ड आर्केडिया इन 1590। तो इतना ज्यादा आपको ये तो नहीं है, लेकिन जो मेन आपको याद रखना है, उनकी सिस्टर ने जो एडिट किया है 1593 में, वो आपको याद रखना है। मेरी हर्बर्ट हरसेल्फ पब्लिश्ड एन एडिशन ऑफ आर्केडिया, ये देखिए, है ना, मेरी हर्बर्ट ने खुद इसको पब्लिश किया है, क्या है, कॉल्ड द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया। तो ये प्रश्न पूछ सकता है, डाउट हो सकता है, आर्केडिया नाम सुन के आप सर फिलिप सिडनी को कह सकते हैं, राइट, मतलब आप, लेकिन सिर्फ आर्केडिया अगर है तो सर फिलिप सिडनी, लेकिन द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया है तो मेरी हर्बर्ट, सिस्टर ऑफ सर फिलिप सिडनी, ये आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए, दिस वर्क इज ऑफन कॉल्ड ट्रेजिकॉमिक। दिस वर्क इज ऑफन कॉल्ड ट्रेजिकॉमिक, है ना, इस वर्क को क्या है, क्या कहा जाता है, ट्रेजिकॉमिक कहा जाता है। इन 5 एक्ट्स इट कंटेन्स सेवरल इक्लॉग्स, ये क्या है, इट कंटेन्स सेवरल इक्लॉग्स। ओके स्टूडेंट, सी, अब यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क रिटन बाय सर फिलिप सिडनी, जो आता ही आता है एग्जाम में, हम उसकी चर्चा करें। देखिए, now let us discuss the most important work written by Sir Philip Sidney's Apology for Poetry, या इसका एक और नाम है, क्या है, द डिफेंस ऑफ पोएजी, 1595, द डिफेंस ऑफ पोएजी। ठीक है स्टूडेंट, एज यू नो, द अर्लियर द ओल्ड इंग्लिश वाज समथिंग डिफरेंट। ओल्ड इंग्लिश में कुछ वर्ड्स और ये बहुत सारे चेंजेस थे, मॉडर्न इंग्लिश में उसका अपग्रेडेशन हुआ है। ओके स्टूडेंट, सो आप लोग थोड़ा सा स्पेलिंग पर ये, है ना, चलिए, यहाँ पर क्या है, अपोलॉजी फॉर पोएट्री, द डिफेंस ऑफ पोएजी। वंस अगेन लेट मी आस्क यू, हैव यू रेड दिस पोएम, हैव यू रेड दिस वर्क ऑफ सर फिलिप सिडनी इन स्कूल और इन कॉलेज लेवल? Student, I am trying to put all the major facts, I am trying to discuss maximum facts in the class, and as you know, we have the work, the literature is very vast, but even though I am trying to complete it, and definitely we will cover, है ना, maximum portion। okay, see, apology for poetry or the defense of poetry। apology का मतलब क्या है, apology मतलब वही to beg pardon, है ना, to beg pardon, है ना, एंड फॉर पोएट्री, या द डिफेंस ऑफ पोएट्री, डिफेंस मींस टू मेक सिक्योर, टू डिफेंस, टू डिफेंड करना किसी चीज को। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोएट्री का विरोध कर रहा है। यस और नो, लेट मी पुट समथिंग इन योर माइंड, लेट मी गिव यू क्लू, है ना, देयर इज या बिकॉज़ देयर इज अ सिचुएशन, देयर मे बी पर्सन, देन यू देयर इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएटेड दैट पोएट्री इज इन डिफिकल्ट सिचुएशन। यस और नो, कहीं ना कहीं पोएट्री को कुछ ना कुछ हार्म कर रहा ना, तभी तो हम पोएट्री से सॉरी कह रहे हैं, अपोलॉजी कर रहे हैं, यस और नो, या उसकी उसको डिफेंस कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, यस और नो, उसका बचाव कर रहे हैं, यस और नो। समझ में आ रहा कि नहीं, आई एम गिविंग यू द आइडिया, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ये, यस और नो स्टूडेंट, गॉट द पॉइंट? सी, so apology for poetry or the defense of poesy, see what is this? Actually, first of all, let me tell you, probably it was written in 1579 and 80, but published in 1595 after his death। देखिए, again
When Sir Philip Sidney died, this work was published. See, a playwright, Stephen Gosson. Remember, student, the name of Stephen Gosson. Stephen Gosson. Have you read this or not? Tell me. If you don't reply, actually, please reply, so that there should be two-way communication. There should be two-way communication. See, a playwright, Stephen Gosson, dedicated his attack on the English stage, the school of abuse, to Philip Sidney in 1579. चलिए, क्या है स्टीफन गोसन ने क्या किया, जो डेडिकेटेड हिज अटैक, मतलब जो इंग्लिश के ऊपर, या सर फिलिप्स, द स्कूल ऑफ एब्यूज। द स्कूल ऑफ एब्यूज का मतलब ये है कि एक तरीके से ग्रुप कह लो, या ऐसे लोग कह लो जो क्या है, पोएट्री या लिटरेचर इन सबको फालतू समझते हैं, जो कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, इससे अच्छा कोई दूसरा काम कर लो, है ना। जैसे पोएट्री पढ़ना हो, कहानी पढ़ना हो, दीज आर नथिंग, दे आर नॉट, यू कैन से इट इज यूजलेस, इनका कोई यूज नहीं है, देयर इज नो यूज। आई एम नॉट सेइंग, ऐसे कुछ लोग सोचते हैं, जैसे सर अपने स्टीफन गॉसोन, ऐसा है ना, पोएट्री के बारे में अभी कुछ भला बुरा कहेंगे तो बाद में जो है सर फिलिप सिडनी साहब जो इनको रिप्लाई देंगे, है ना। ठीक है, अब क्या है, क्या ये कहेंगे और क्या रिप्लाई करेंगे, आइए जानते हैं। सी, थोड़ा बहुत समझ में आ गया, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक मतलब आपको ये सार नो। नाउ सी, स्टीफन गोसन मोटिवेटेड सिडनी एंड इन रिप्लाई ही रॉट, क्या है, द डिफेंस ऑफ पोएजी, है ना। यहाँ पर देखिए गोसन मोटिवेट, तो क्या उसको डिमोटिवेट करा उन्होंने, हालांकि तो यहाँ पर क्या है, सिडनी को उन्होंने कुछ लिखा, तो बाद में जो है उन्होंने रिप्लाई में क्या लिखा सिडनी ने, द डिफेंस ऑफ पोएजी। दिस वर्क ऑफ सिडनी इन्फ्लुएंसेस पीबी शैलीज अ डिफेंस ऑफ पोएट्री। देखिए यहाँ पर देखिए पोएजी है स्टूडेंट, है ना, यहाँ पर ये पोएट्री गलत लिख दिया, ये पोएजी, ठीक है, पोएजी। दिस वर्क ऑफ सर फिलिप सिडनी पीबी शैलीज अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, यहाँ पर देखिए पोएट्री, अ डिफेंस ऑफ, मतलब ये दोनों ने प्रश्न आता है, हालांकि दोनों सेम ही मान लीजिए आप, अ डिफेंस ऑफ पोएजी, अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, ये जो है दोनों पूछा जाता है, यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, किस किसने लिखा है, तो पीबी शैली और सर फिलिप सिडनी, ये दोनों का नाम आप याद रखेंगे, अ डिफेंस ऑफ पोएजी या पोएट्री में। रिमेंबर स्टूडेंट, है ना, यानी जो सर फिलिप सिडनी ने द डिफेंस, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये अपोलॉजी फॉर, हाँ प्रश्न बन सकता है, इसका एक और नाम क्या है, अपोलॉजी फॉर पोएट्री, या द, यहाँ ये द से शुरू हो रहा है, द, और यहाँ पर ये अ, है ना, ऐसा कुछ अंतर आप कर सकते हैं, हालांकि दोनों का एक साथ ही पूछा जाता है, डिफेंस ऑफ पोएट्री। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, हो क्या रहा है, मैं आपको जैसा मैंने बताया कि स्टीफन गोसोन जो है वो पोएट्री के बारे में थोड़ा नेगेटिव थॉट रखते हैं, वो कुछ चार्जेस लगाते हैं, कुछ आरोप लगाते हैं पोएट्री के ऊपर, है ना। क्या है कि पोएट्री जो है, पोएट्री इज यूजलेस, इट्स नॉट मीनिंगफुल, इट्स नॉट यूजफुल, है ना। वो क्या क्या चार्ज लगाते हैं, आइए हम उस चार्जेस को भी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री या द डिफेंस ऑफ पोएजी में सर फिलिप सिडनी क्या लिखते हैं उसको जानते हैं। वो कहते हैं सर फिलिप सिडनी, देखिए, there is no art delivered to mankind that hath not the works of nature for his principal object. There is no art delivered, कोई भी आर्ट डिलीवर नहीं किया जाता, क्या है, टू मेन काइंड, है ना, मनु क्या है, मेन काइंड, टू मेन काइंड दैट हैथ नॉट द वर्क्स ऑफ नेचर फॉर हिज प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, कोई भी हम आर्ट है, कोई भी काम करते हैं, प्रकृति खुद अपने आप नहीं करती है मनुष्य के लिए, मनुष्य क्या कर रहा है, प्रकृति तो अपने स्तर पे उसका चल रहा है, लेकिन मनुष्य कोई काम कर रहा है, कोई आर्ट है, तो मनुष्य को कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, यस और नो। तो देयर इज नो आर्ट डिलीवर्ड टू मैनकाइंड दैट हैथ नॉट द वर्क्स ऑफ नेचर, यानी ये नेचर का काम नहीं है मनुष्य के लिए, मानवता के लिए कोई आर्ट, कोई कला की अगर प्रस्तुति करना है, नेचर का काम नहीं है, नेचर खुद लिखेगी क्या पोएट्री, यस और नो, टेल मी। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रकृति, कोई भी काम, प्रकृति तो अपना जो चलना है वो चल रही है, बाकी जो भी परिवर्तन हो रहे हैं प्रकृति में वो किसी किसके कारण हो रहे हैं आज के तारीख में,
वो सब मनुष्य के कारण हो रहे हैं, वो उसके प्लस माइनस पॉइंट हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पोएट्री इज लॉन्ग लास्टिंग, बिगिंस फर्स्ट एंड लास्ट लॉन्गेस्ट। पोएट्री इज लॉन्ग लास्टिंग, बिगिंस फर्स्ट एंड लास्ट लॉन्गेस्ट। ये देखिए पोएट्री क्या है, लॉन्ग लास्टिंग का मतलब लंबे समय तक चलते। आप देखिए कहाँ 400-500 साल पहले लिखी गई है और अभी भी चल रही है। आप सोचिए इतना राइटिंग, जो जो हम कोई चीज जानते हैं कि हमारे पूर्वज ये है, ये ऐसा है, सोसाइटी के बारे में हम पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं क्या रिटर्न फॉर्म में है, तभी तो हमें पता चल रहा है। तो कुल मिला के क्या है कि पोएट्री क्या है स्टूडेंट, पोएट्री इज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का करने का मतलब है इमिटेट करना, टू इमिटेट, टू एक्वायर, टू फॉलो, है ना, टू इमिटेट, टू एक्वायर, टू फॉलो समथिंग, है ना, किसी चीज को मतलब एक तरीके से अनुसरण करना। पोएट्री इज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन। पोएट्री क्या है, इमिटेशन है, क्या है कि इज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन। गॉट इट स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पोएट्री है, इस तरीके से पोएट्री के बारे में लिखते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि पोएट्री इज स्पेयरिंग पिक्चर एंड इट्स एंड इज टू टीच एंड डिलाइट। ये देखिए स्पेयरिंग पिक्चर है ना, इसका मुख्य क्या अंतिम रूप से क्या, इसका टीच यानी ज्ञान प्रदान करना और आनंदित करना। देयर आर टू ऑब्जेक्ट ऑफ द पोएट्री, दैट इज टू टीच एंड टू डिलाइट। ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि पोएट्री फ्लोरिशेस इन ऑल कंट्रीज इन ऑल एजेस। ये देखिए ये पोएट्री जो है ये फ्लोरिशेस, देयर इज नो बैरियर, देयर इज नो बाउंड्रीज फॉर पोएट्री। पोएट्री फ्लोरिशेस इन ऑल कंट्रीज इन ऑल एजेस। सभी युग में, सभी देशों में पोएट्री क्या है, फ्लोरिश करती है। फ्लोरिश करने का मतलब महकती है, या आप कह सकते हैं कि मतलब एक तरीके से महकती है, आप कह सकते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, पोएट्री फ्लोरिश करती है, मूव करती है। कहीं पर भी आप जो है कोई रोक टोक नहीं है, हर जगह। आज हम पढ़ रहे हैं, इन वी आर इंडियन, वी आर रीडिंग, है ना, वी आर, यू कैन से वी आर डिस्कसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पोएट्री, बट एनी अदर प्लेस, एनी अदर कंट्री, दिस पोएम कैन बी डिस्कस्ड। दूसरा वो कहते हैं कि पोएट्री क्या करती, सॉफ्टन्स द हार्ड हार्ट्स। पत्थर जैसे हृदय को क्या है, ये लचीला बनाती है क्या, पोएट्री। ऑफ ट्रक्स, ट्रक्स एंड टार्टर्स, शार्पन्स द रेड इंडियन विच। है ना, अब ये थोड़े से टफ वर्ड है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ट्रक्स और टार्टर्स, है ना, ऐसे कठिन जो भी लोग रहे होंगे, हार्ड हार्ट रहा होगा, उनको क्या है, सॉफ्टन्स यानी लचीला बनाती है। शार्पन्स रेड इंडियन विट, रेड इंडियन की बुद्धिमत्ता को क्या है, ये शार्प करती है, तेज करती है। ऐसा सर फिलिप सिडनी जी का कहना है। विद अ स्वाड, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण स्टूडेंट, ये कोटेशन सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, एज इट इज कोटेशन उठा के आपसे पूछा जा सकता है। क्या है, विद अ स्वाड हाउ मेस्ट किल दाई फादर। एक स्वाड से, एक तलवार से आप अपने क्या है, पिता की हत्या कर सकते हो। एंड विद द स्वाड दाउ मेस्ट डिफेंड दाई प्रिंस एंड कंट्री। लेकिन दूसरी तरफ उसी स्वाड का, उसी तलवार का आप अगर उपयोग करते हैं, तो आप अपने प्रिंस और अपने कंट्री की रक्षा कर सकते हो, देश सेवा भी की जा सकती है। समझ में आ रहा है, यस और नो। एक तलवार से देश सेवा भी की जा सकती है, आपके पिता का सर भी काटा जा सकता है, ऐसा उनका कहना है। ये इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू यूटिलाइज दिस। समझ में आ रहा है। इसलिए किसी ने कहा है, यहाँ पर एक आपको मैं एक बहुत प्यारा एक कोटेशन आपको कहना चाहता हूँ। चलाइए, यस और नो, वुड यू लाइक टू लिसन, वुड लाइक टू लिसन। Here is one of the, there is one of the best quotation I would like to always remember, है ना, on the sword, sword के ऊपर, तलवार के ऊपर एक quotation है। He talks about the, you can say, human being harmony। yes or no, वो कहते हैं कि तलवार दो तरह की होती है, तलवार दो तरह की होती है, एक लोहे की, एक मोहब्बत की। समझ में आ रहा है, तलवार दो तरह की होती है, एक लोहे की, एक मोहब्बत की। लोहे की तलवार दो को, एक को दो करती है। लोहे की तलवार क्या है, एक को दो करती है, और मोहब्बत की तलवार दो को एक करती है। समझ में आ रहा है। तो ये है स्टूडेंट
पोएट्री वही मोहब्बत की तलवार है जो अनेक को एक करती है। समझ में आ रहा है? यस और नो? एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? एग्री और नॉट स्टूडेंट? टेल मी। See, as per Sydney, the epic is the best and most accomplished kind of poetry. सिडनी के अनुसार क्या है? The epic is the best and most accomplished kind of poetry. ऐसा? बहुत अच्छा। The epic is the best and most accomplished kind of poetry. है ना? इनको जो है सर फिलिप सिडनी जो है एपिक, यहाँ पर देखिए एपिक को ज्यादा वो कहते हैं। द एपिक इज द बेस्ट एंड मोस्ट अकम्प्लिश्ड काइंड ऑफ पोएट्री, यानी एपिक सबसे सर मतलब पूर्ण जो है, सबसे पूर्ण, आप यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से पूर्ण कवि है, ये कविता है। कौन? एपिक। व्हाट इज स्टूडेंट? अपनी पसंद है, ठीक है। कुछ लोगों को हिंसा में विश्वास होता है, कुछ लोगों को अहिंसा में विश्वास होता है, तो ये अपनी अपनी पसंद है। इट्स डिपेंड अपॉन अस, है ना? आपकी क्या आइडियोलॉजी है, आप क्या यही तो पोइट्री है। आपने वैसा पढ़ा है, आपका बैकग्राउंड वैसा है, आपकी थ्योरी वैसी है, आपका जो एटीट्यूड, आपका इन्वायरमेंट, व्यक्ति का इन्वायरमेंट, साइकोलॉजी कहाँ से डेवलप हो रही है, जो हम सीख रहे हैं, है ना? वहीं से। किसी को मोहब्बत की तलवार अच्छी लगती, किसी को लोहे की तलवार अच्छी लगती। इट्स अपॉन यू। आगे देखें हम। म्यूजिक आई से इज द मोस्ट डिवाइन स्ट्राइकर ऑफ द सेंसेस। ये देखिए म्यूजिक क्या है? आई से, कौन? सिडनी केयर इज द मोस्ट डिवाइन स्ट्राइकर ऑफ द सेंसेस, है ना? ये देखिए सेंसेस को, मतलब पूरे सेंसेस को, आपके जो है ना, मतलब आपके सेंस को, रोम रोम को जगा देता है क्या? म्यूजिक। म्यूजिक कहाँ से क्रिएट हो रहा है? पोएट्री से। सॉन्ग ये सब क्या है? पोएट्री के तो फॉर्म है। ऐसा ना? तो इस तरीके से पोएट्री की अच्छाइयां गिना रहे हैं यहाँ पर वो कौन? सर फिलिप सिडनी। पोएट्री इज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन, एक और देखिए, एंड chief function is to teach and delight. Imitation does not mean mere copying or reproduction of facts. यहाँ पर थोड़ा सा वो एक थोड़ा सुझाव देते हैं कि पोएट्री क्या है? जरूर इमिटेशन है, इमिटेशन की फॉलो करने की कला है, या इसका मुख्य काम क्या है? टीच करना, डिलाइट करना है। लेकिन इसका सीधा मतलब ये नहीं है कि इमिटेशन का मतलब ये नहीं है कि सीधा सीधा कॉपी किया जाए या सीधा सीधा वैसा वैसा प्रोड्यूस किया जाए। कुछ न्यू आइडियाज को परफॉर्म करना है। पोएट्री का मतलब है कुछ न्यू ज्ञान को, न्यू टीचिंग को परफॉर्म करना है। ट्रांसम्यूटिंग, ये देखिए इसका मतलब है रिप्रेजेंटेशन, आर ट्रांसम्यूटिंग ऑफ द रियल एंड एक्चुअल एंड समटाइम्स क्रिएटिंग समथिंग एंटायरली न्यू। इसका मतलब यह है किसको रिप्रेजेंट करना, किसको ट्रांसमिट करना? एक्चुअल और रियल, और क्रिएटिंग समथिंग न्यू, कुछ नया प्रोड्यूस करना। दैट इज पोएट्री। ओके स्टूडेंट। सी, सिडनी डिक्लेयर्स पोएट एज, है ना? पोएट को किस रूप में डिक्लेयर कर रहे सिडनी? लिफ्टेड अप with the vigor of his own invention, doth grow in effect another nature in making things either better than nature bringeth forth, are quite new forms such as never were in nature, as the heroes, demigods, cyclops, chimeros, furies and such like. कहने का मतलब ये वो कह रहे हैं कि पोएट क्या करता है? लिफ्टेड अप, लिफ्टेड अप, ऊपर उठाते हैं किसी चीज को, नया इन्वेंशन, नया नजरिया पेश करते हैं। कोई चीज प्रकृति में जैसी दिख रही है उसमें नया इफेक्ट डालते हैं। यस आर नो? है ना? आप मतलब वही एक्शन, वही डायलॉग आप कहते हैं और कोई स्टार कहता है तो बात होती है अलग। यस आर नो? वही चीज है यहाँ पर राइटर कर रहा है। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सिडनी डिस्क्राइब्स 3 टाइप्स ऑफ पोएट्री। कौन कौन सी? नंबर 1 रिलीजियस पोएट्री, सेकंड फिलोसॉफिकल पोएट्री, थर्ड, है ना, यहाँ पर पोएट्री इज एन इमिटेशन, पोएट्री इज एन इमिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ आर्ट एंड नेचर। ये देखिए प्रश्न बन सकता है कितने टाइप की पोएट्री? सिडनी के अनुसार रट लेना,
क्वेश्चन आपसे ये तीन फैक्ट दे देंगे, चौथा कुछ और अल्टरनेटिव दे देगा और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन नहीं है, विच इज नॉट अमंग दी थ्री टाइप्स पोइट्री। देखिए यहाँ पर क्या है, रिलीजियस पोएट्री है ना, फिलोसॉफिकल पोएट्री। पोएट्री इज एन इमेजिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ आर्ट एंड नेचर। इमेजिनेटिव, इट इज द प्योर वर्क ऑफ इमेजिनेटिव स्टूडेंट। ठीक है, रिमेंबर, जरूर याद रखना, रिलीजियस पोएट्री, फिलोसॉफिकल पोएट्री एंड पोएट्री इज एन आर्ट, इज एन इमेजिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ आर्ट एंड नेचर। सी, अब यहाँ पर देखिए, पोएट्री इज एन इमेजिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ आर्ट एंड नेचर। अब यहाँ पर देखिए, he called special attention to the third class of poets, है ना, थर्ड क्लास ऑफ पोएट्स। द थर्ड काइंड ऑफ पोएट्री, थर्ड क्लास ऑफ पोएट का मतलब तीसरे प्रकार के भी कुछ पोएट होते हैं, वो क्या है? द थर्ड काइंड ऑफ पोएट्री वाज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू विगरस स्पेसीज। कुछ अलग अलग हैं और टाइप्स हैं पोएट्री के, हेरोइक है, लिरिक है, ट्रेजिक है, कॉमिक है, सैटरिक है, आयम्बिक है, इलेजियक है, पेस्टोरल है और अदर बहुत सारी पोएट्री के और फॉर्म होते हैं। लेकिन मोटे मोटे रूप में उन्होंने ये तीन पोएट्री बताई है, क्या है? रिलीजियस, फिलोसॉफिकल और पोएट्री इज एन इमेजिनेटिव ट्रीटमेंट। ठीक है, ठीक है, सुपीरियोरिटी टू पोएट्री और फिलोसॉफी इन हिस्ट्री। देखिए यहाँ पर उन्होंने जो है पोएट्री को ज्यादा उन्होंने प्रायोरिटी दी है, सुपीरियोरिटी दी है, रादर देन फिलोसॉफी एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री और उसके बजाय क्या है, पोएट्री को ज्यादा मतलब महत्व दिया है। क्यों? लिसन केयरफुली व्हाई। हिस्ट्री जैसा फैक्ट है वैसा लिखा गया है, लेकिन पोएट्री लिखने के लिए आपको, है ना, सोचिए स्टूडेंट, पोएट्री लिखने के लिए क्या है, आपको एक बहुत मेहनत लगती है, उसको सजाना पड़ता है, कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना पड़ती है, उसके राइमिंग मिलाना पड़ते हैं, है ना, कंटेंट, तो बहुत मेहनत से लिखी जाती है पोएट्री। सी, अब यहाँ पर देखिए, सिडनी एम्प्लॉयड फॉर रिप्लाईज टू द ऑब्जेक्शंस टू पोएट्री। देखिए यहाँ पर क्या है, गोसोन साहब ने, है ना, जो गोसोन साहब ने जो है चार्ज लगाए थे, ठीक है, थोड़ा सा जो है मैं आपको ये देखिए, मैं सी, ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट सी, ये जो गोसोन साहब है, इन्होंने कुछ पोएट्री के ऊपर क्या है चार्ज लगाए हैं, कुछ आरोप लगाए हैं, है ना। उन आरोपों को क्या है, उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए हैं, क्या क्या इन्होंने आरोप लगाए थे, ये देखिए, दीज फोर चार्जेस, है ना, ये दीज फोर चार्जेस। तो इन्होंने क्या क्या आरोप लगाए हैं? ऑब्जेक्शंस टू पोएट्री, इनको पोएट्री को बारे बहुत देखिए, जरूर याद रखना, स्टीफन गोसोन। सिडनी एम्प्लॉयड फोर रिप्लाईज टू द ऑब्जेक्शंस टू पोएट्री। क्या क्या ऑब्जेक्शंस है पोएट्री के ऊपर, किसने आरोप लगाए हैं? स्टीफन गोसोन ने। समझ में आया ये सर? नो, स्टीफन गोसोन, he charges few, you can say he charges four objections। क्या क्या चार्ज? पहला तो कहते हैं कि इट इज द मदर ऑफ लाइज, है ना, झूठ की मदर है आपके सब्जी पोएट्री, क्या ओनली क्या है ना, या कह ले झूठ का पुलिंदा, इट इज द मदर ऑफ लाइज। अब देखिए पोएट्री के बारे में ऐसा कह रहे हैं कौन? स्टीफन गॉसन। देन इट इज द नर्स ऑफ एब्यूज, infecting us with many pestilent desires। It is the nurse of abuse, it is the nurse of abuse, infecting us with many pestilent desires। ये क्या है? वही abuse, infecting us, हमको इन्फेक्ट, नर्स ऑफ एब्यूज यानी जो बुराइयां हैं उसकी नर्स है ये, नर्स ऑफ एब्यूज, इन्फेक्टिंग अस विद मेनी पेस्टिलेंट डिजायर्स, जो हमें क्या इन्फेक्ट कर रही है बहुत गलत डिजायर की तरफ ले जाके। दूसरा यहाँ पर क्या है, प्लेटो हैड बैनिश्ड पोएट्स फ्रॉम हिज आइडियल रिपब्लिक। ये देखिए, प्लेटो ने भी क्या है स्टूडेंट, प्लेटो ने भी पोएट्री का विरोध किया था, और उस उन्होंने क्या है, अपना जो ये देखिए आइडियल रिपब्लिक है, उस रिपब्लिक में क्या है, उन्होंने पोएट्री को या पोएट्स को क्या करा था, उन्होंने बैनिश किया था, है ना। आप सोचिए, निकाल दिया था, देश निकाला कर दिया या बैन कर दिया था, आप इसको ऐसा यूं समझे। तो प्लेटो हैड बैनिश्ड द पोएट्स फ्रॉम हिज आइडियल रिपब्लिक। तो यहाँ पर प्लेटो ने जो किया था उसका समर्थन कर रहे हैं कौन? स्टीफन गॉसवन। देयर मे बी मेनी अदर मोर फ्रूटफुल नॉलेज, वो कहते हैं कि देयर मे बी मेनी अदर मोर फ्रूटफुल नॉलेज, अ मैन माइट बेटर स्पेंड हिज टाइम ऑन देम। और भी बहुत सारे फ्रूटफुल नॉलेज के तरीके हो सकते हैं
दूसरे काम और भी हो सकते हैं, एक मनुष्य दूसरे काम की ओर भी ध्यान दे सकता है बजाय पोएट्री पढ़ने के। तो ये आरोप लगाए गए हैं किसके द्वारा? स्टूडेंट स्टीफन गोसोन के द्वारा इन हिज स्कूल ऑफ एब्यूज। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये सार नो गॉट इट? क्या क्या है? इट इज द मदर ऑफ लाइव्स, क्या? पोएट्री। इट इज द नर्स ऑफ एब्यूज, infecting us with many pestilent desires. Plato had banished the poets from his idea republic. There may be many other more fruitful knowledge, might better spend his time on them. These four charges were leveled by Stephen Gosson in his School of Abuse. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब ये देखिए, अब सिडनी रिप्लाई करेंगे, ये तो आरोप लगा दिए। सिडनी प्रूव्ड ऑल दीज चार्जेस अगेंस्ट पोएट्री एज फॉल्स एंड बेसलेस। सिडनी ने क्या है, इनको साबित किया, ये सारे आरोप पोएट्री पे जो लगाए हैं स्टीफन गोसन ने, ये सब फॉल्स हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। द पोएट्स वर द एंशियंट ट्रेजर्स, पुराने ट्रेजर्स हैं, संपत्ति है। कौन? पोएट। ऑफ द ग्रेशियन डिवाइनिटी, है ना, जो ग्रेशियन डिवाइनिटी, जो ज्ञान है, दिव्य शक्ति, दिव्यता है, उसके वो क्या है? ट्रेजर है, मूलभूत। दे वर द फर्स्ट ब्रिंगर्स ऑफ ऑल सिविलिटी, या सिविलिटी, सिविलाइजेशन बोलते हैं ना, सिविलिटी, सिविलाइज, यानी जो सभ्यता है उसको ब्रिंग करने में, यानी जो ट्रांसमिट हो रही सभ्यता सदियों से, उस सभ्यता को ट्रांसमिट करने में पोएट्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या है? दे वर द फर्स्ट ब्रिंगर्स ऑफ ऑल सिविलिटी। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर क्या है? पोएट्स जो है बहुत, बोलते हैं ना, खजाना है ना, या एक तरीके से डायमंड है। समझ में आ रहा है? सी आगे वो कहते हैं कि a poet can immortalize people in his works। ये देखिए वर्सेस, immortalize people, लोगों को क्या वो अमर कर सकते हैं? कहाँ पर? अपने वर्ष में। अपने वर्ष में क्या है, लोगों को अमर कर सकते हैं। और हम पढ़ते हैं स्टूडेंट, कहीं कैरेक्टर्स को अमर कर दिया है राइटिंग्स ने। यस आर नो? गॉट इट? सी द ओनली ट्रेजेडी ही प्रेज्ड इज गॉर्बोडॉक। The only tragedy he praised is Gorbodoc। ये जो Gorbodoc tragedy है, इसकी इन्होंने प्रशंसा करी है। सिडनी से, सिडनी कहते हैं that rhyme is not the essence of poetry। ये देखिए, rhyme उतना essence नहीं है, उतना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, but it is desirable to it, है ना। हालांकि मतलब essence नहीं है, सार नहीं है rhyme, लेकिन ये बहुत desirable है स्टूडेंट। सो ये आपकी जो डिफेंस ऑफ पोइट है ना, ये मतलब इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर 4 पॉइंट जो है वो मिसिंग है। मैं कल थोड़ा सा उसको आपको एक बार वो समझा दूंगा कि उन्होंने 4 जो पॉइंट है, और 4 पॉइंट को 4 तरीके से उन्होंने रिप्लाई किया था, है ना। टुमारो आई विल एडिट इट, एंड एक स्लाइड आपको सर फिलिप सिडनी पे कल मिलेगी, एंड देन वी विल डिस्कस न्यू राइटर। ओके स्टूडेंट, गॉट इट? यस आर नो? यस आर नो स्टूडेंट? ठीक है, so wish you all the best, thank you very much, it's enough। ठीक है ना? yes, generally I found here and there, and why do you there are so many sources, ठीक है ना, there are so many sources की कमी नहीं in the market, है ना। there is, आपको जो है, आप सोर्स पे जाओगे तो ढेर है, सोर्स के ऊपर डिपेंड मत रहो, हजारों सोर्स हैं। वन थिंग लेट मी क्लियर, ठीक है, आपको जो है क्या होता है, सोर्स वो पढ़ो जो आपको समझ में आ रहा है, जो बार बार आपके सामने आ रहा है। जैसे मैं आपको एक कर रहा हूं, तो आपको नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं स्टूडेंट, उस पर ध्यान दो, उससे क्या है, ठीक है। तो यू कैन गो थ्रू द, हाँ यस, एनी बुक यू कैन रीड, एनी बुक यू कैन रीड, है ना, इन द मार्केट, है ना, जो आपको लगती है अच्छी, कोई भी मार्केट से आप बुक उठा लीजिए, देयर आर सो मेनी सोर्सेज, ठीक है। यस, यस, दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। सो इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रिवीजन करें मल्टीपल टाइम, है ना। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।